what is design quality? Basically, the quality's role. That means how quality plays a role in the designing part. The importance of design is quality. That means designing का importance क्या है? Quality. Design is the place where quality is fostered. Now, what is fostered? Fostered means develop करना, development होना. Okay? Design एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्वालिटी क्या करती है? क्वालिटी डेवलप होती है. क्योंकि जैसे जैसे आप न्यू न्यू डिज़ाइन बनाते जाओगे, रिफाइन करते जाओगे उसको, तो एट द एंड यू विल गेट द फाइनल रिफाइंड डिज़ाइन फॉर योर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. ओके, सो दैट्स वाई इट्स रिटन हियर, डिज़ाइन इज द प्लेस वेयर क्वालिटी इज फॉस्टर्ड. दैट मीन्स क्वालिटी वहाँ पे रिफाइन होती जाती है, रिफाइन डेवलप होती जाती है. ठीक है. So next is provides a representation of software that can be assessed for quality. That means design provide us the representation of software. How the actual software product will look like is represented by the design so that it can be assessed for the quality. Next is accurately translate a customer requirement into a finished software product, because we keep on refining that design. So when at end we get actual design, that is basically a finished software product. Okay, so it serves as a foundation for all software engineering activity that follow. That means the designing part serves as the foundation, or you can say serve as the base for the next development activities. Next software development activities कौन सी होंगी डिजाइनिंग के बाद? कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस. ओके, these will come after the designing part. So without design, we risk building an unstable system. जब तक हम डिज़ाइन नहीं डेवलप करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का, देन जो सिस्टम हम बनाएंगे दैट विल बी अनस्टेबल, बिकॉज इट इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय द कस्टमर until we have not made the design. It may be difficult to test. It cannot be assessed for quality. ये क्या है? विदाउट डिज़ाइन. अगर हम डिज़ाइन के बिना चलेंगे देन क्या क्या रिस्क हमें हो सकते हैं? Cannot be assessed for quality later in the software process when time is short and most of the budget has been spent. Okay, so the quality of design is assessed. अब डिज़ाइन की जो क्वालिटी है वो कौन असेस करता है? कैसे असेस की जाती है? असेस करता है वो कस्टमर. ठीक है, थ्रू अ सीरीज ऑफ फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज. इसमें क्या है? टेक्निकल पर्सन्स भी इंक्लूडेड हो सकते हैं. जब भी आप कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हो तो इट्स बेटर टू गेट इट चेक्ड बाय द टेक्निकल रिव्यूअर्स. ओके, ताकि जो भी उसमें कमी है वो आपको कम्प्लीटली उसके बारे में पता चल जाए और आप टाइम टू टाइम उसमें मॉडिफिकेशन करते रहो. उसके बाद आप रिफाइंड प्रोडक्ट कस्टमर को सर्व करो. ओके, और डिज़ाइन वॉक थ्रू मतलब वॉक इन्स. सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द गोल्स ऑफ अ गुड डिज़ाइन. नाउ मेन गोल्स क्या हैं गुड डिज़ाइन? अच्छा डिज़ाइन बनाने के क्या क्या मोटिव्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं टू डिज़ाइन फॉर अ गुड डिज़ाइन? The design must implement all of the explicit requirements contained in the analysis model. Now, what is the meaning of explicit requirements here? The requirements that you have written down in the SRS document. The requirements that you have written in the SRS document that are called as explicit requirements. Okay, so designing में क्या होना चाहिए? The design must implement, it must include all the explicit requirements that are mentioned in the SRS, or you can say that are contained in the analysis model. क्योंकि analysis model में हम क्या डिस्क्राइब करते हैं? वो भी एक SRS का ही पार्ट है, analysis model. So it must also accommodate मतलब include all of the implicit requirements desired by the customer. That means जो डिज़ाइन है उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जो कि कस्टमर ने हमें बताया था, वो सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए. सो द डिज़ाइन मस्ट बी अ रीडेबल मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड. डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि देखते ही उसको जो कस्टमर है अगर उसको नहीं भी कोई टेक्निकल नॉलेज, ही मे बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. एन अंडरस्टैंडेबल गाइड फॉर दोज हु जनरेट कोड. दैट मीन्स जब डिज़ाइनिंग हो गई उसके बाद कौन सा पार्ट आएगा? कोडिंग आएगी, फिर टेस्टिंग आएगी. ओके, तो अगर एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टीम है कोई, उसमें एक बंदे ने रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया, दूसरे ने डिज़ाइनिंग की, तीसरे ने कोडिंग करनी है एंड नेक्स्ट ने टेस्टिंग करनी है. तो कोडिंग और टेस्टिंग जिसने करनी है पर्सन ने, तो उसके लिए भी ये जो डिज़ाइन है आपका ईजिली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए.
ताकि वो डिज़ाइन को देख के उसके बाद इजीली वो उसको बना सके, ठीक है, कोडिंग उसकी उसके हिसाब से कर सके. सो दैट मीन्स अ डिज़ाइन शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड रीडेबल बाय द coder or tester. Okay, so the design should provide a complete picture of the software addressing the data, functional and behavioral domain from an implementation perspective. Now जो डिज़ाइन है वो होना कैसा चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट पिक्चर, मतलब कंप्लीट बता दे कि उसमें ये इंटरफेसेस होंगे, ये मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है. तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट पिक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर. जिससे क्या होगा, जो कोडिंग करने वाला बंदा है उसको इजी होगा कि उसने कौन कौन से मॉड्यूल बनाने हैं, उसको डिज़ाइन से ही पता चल जाएगा, ठीक है. तो डिज़ाइन के बाद वो उस मॉड्यूल के लिए, पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए कोडिंग स्टार्ट कर सकता है. Guidelines. So what are the guidelines that should be used while ensuring the design quality? So first is a design should exhibit matlab it must have, a design should have an architecture. डिज़ाइन का जो आर्किटेक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. फर्स्ट इज हैज़ बीन क्रिएटेड यूजिंग recognizable architectural styles or patterns of an architecture that has been created using recognizable architectural style. Recognizable मतलब that is easy to identify. Recognize का मतलब होता है कि उसको पहचानना easy हो जाए. Recognizable architectural style, ऐसा architectural style या pattern होना चाहिए जो कि easily recognize कर सके दूसरा बंदा. ओके, सो नेक्स्ट है इट इज कंपोज्ड ऑफ कंपोनेंट दैट एग्जिबिट गुड डिज़ाइन करेक्टरिस्टिक. दैट मीन्स डिज़ाइन की जो क्वालिटी है वो कैसे इंश्योर होगी अगर उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं जिनका क्या है, गुड डिज़ाइन फीचर्स हैं उनके. ओके, सो इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एन एवोल्यूशनरी फैशन. ना व्हाट इज एवोल्यूशनरी फैशन? दैट मीन्स रिपीटेशन. पहले एक डिज़ाइन बनाया, उसको कस्टमर की अप्रूवल मिली, कुछ चेंजेस हुए, फिर न्यू डिज़ाइन बना, at the end refined design bana. So this step by step process is known as evolutionary. We have also discussed iterative model. Iterative model is also called as evolutionary model. Okay, by facilitating implementing and testing. That means अगर evolutionary fashion में implement किया गया होगा, so that will provide help in the implementation and testing part. Next is a design should be, अब जो ये design quality guidelines हैं, I am explaining you all. आप इसको अपनी वर्डिंग में एक लाइन में, मतलब एक पॉइंट को एक लाइन में भी इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो. ओके, यू डोंट हैव टू cram all these as it is. Okay, so a design should be modular. Now what is modular? Basically whenever one module, that means for example there is student module in your project, if you divide student module into number of sub modules and each sub module is independent of each other. अगर आपने कोई स्टूडेंट मॉड्यूल बनाया है उसमें क्या है, स्टूडेंट क्लासरूम है, स्टूडेंट मार्कशीट है, ओके, स्टूडेंट परफॉर्मेंस है. आपने क्या किया है, एक मॉड्यूल के अंदर 3-4 मॉड्यूल्स बनाए हैं, मतलब एक मेन मॉड्यूल को सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया और हर सब मॉड्यूल जो है वो इंडिपेंडेंट है दूसरे मॉड्यूल के, मतलब वो डिपेंडेंट नहीं है. सो दैट डिज़ाइन मीन्स मॉड्यूलर. क्योंकि कल को अगर कोई भी उसमें प्रॉब्लम आती है एक मॉड्यूल में, सो यू will be able to track that module easily. तो आप उस मॉड्यूल में ही आपको चेंजेस करने होंगे, उसको ट्रैक करोगे, आप उसमें चेंजेस करोगे. Design should be modular, that is the software should be logically partitioned into elements or subsystem that I have already discussed. Okay, a design should contain distinct representation of data. Distinct means separate representation. Okay, suppose one module is using this data structure, it is following the stack structure, second is following the queue structure. Okay, so in this way a design should contain distinct representation of data, architecture, interfaces and component. So next is a design should lead to data structure that are appropriate for the classes to be. अब data structure depend किस पे करेगा कि कौन सा data structure आपने यूज करना है. It will depend upon the structure of the class. क्लासेस में आपने डेटा कैसे लिया है ये उस पर डिपेंड करेगा. टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड आर ड्रॉन फ्रॉम रिकॉग्नाइजेबल डेटा पैटर्न्स. सो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज अ डिजाइन शुड लीड टू कंपोनेंट दैट हैव इंडिपेंडेंट फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक. दैट मीन्स डिजाइन में जो कंपोनेंट्स होंगे वो ऐसे होने चाहिए
जो जिनका क्या है, जिनकी फंक्शनैलिटी क्या है, इंडिपेंडेंट है. रिलेट टू इंटरफेसेस दैट रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ कनेक्शन बिटवीन कंपोनेंट एंड विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. मतलब डिज़ाइन में जो इंटरफेसेस बनाओगे आप, जिसके थ्रू जो यूज़र है कम्युनिकेट करेगा, वो इंटरफेस ऐसे होने चाहिए कि वो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करें, जो कनेक्शन है उनमें आपस में कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करें, क्योंकि यूज़र के लिए वो जिसने भी इसको एक्सेस करना है उसके लिए वो बहुत सिंपल होना चाहिए. दैट शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स. ओके, a design should be derived using a repeatable method that is driven by information obtained during software requirement analysis. So last point is a design should be represented using a notation that effectively communicate its meaning. So design भी क्या है? It is also a graphical representation of the software project. Okay, but it comes after the requirement analysis part. So next we are going to discuss about the design concept. Okay, now what basically design concept are? That means the concepts that you have to follow to develop a design for your software project. Okay, so what are these design concepts? First design concept is data abstraction. Useful information को extract करना, okay, and hide all the irrelevant information. जब भी आप डिज़ाइन बनाओगे, किसी भी चीज़ का डिज़ाइन बना के दिखाओगे, कस्टमर को आप लेआउट बना के दिखाओगे कि ये आपका मतलब प्रोजेक्ट लुक लाइक, इट विल लुक लाइक दिस, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ये होगा उसका, ये फंक्शनलिटी होगी, ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन मॉड्यूल्स के बीच में फ्लो करेगी, ये बताओगे आप. दैट मीन्स दैट इज द हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? जिसमें कंप्लीट डिटेल होती है, कोडिंग होगी आपकी, एसआरएस होगी, वो क्या है? लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जब भी आप डिजाइनिंग करोगे देन यू हैव टू डिजाइन इट इन दिस मैनर कि एब्स्ट्रैक्शन होनी चाहिए उसमें. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या? कि जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है कस्टमर के लिए, सिर्फ आपने वही उसको शो करनी है. उसको जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है जिसके लिए उसका कोई भी कंसर्न नहीं है, वो आपने उसको शो नहीं करना. दैट इज बेसिकली द एब्स्ट्रैक्शन. ओके, सो एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है? डेटा, प्रोसीजर एंड कंट्रोल. आप उसको बताओगे कि ये डेटा होगा आपका. प्रोसीजर मतलब कैसे कैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, कैसे कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो करोगे, दैट इज कंट्रोल. ओके, सो सेकंड फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ डिजाइन इज आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर क्या होगा? ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा सॉफ्टवेयर का. फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप अपने घर बनाना है, आपने यू वांट टू गेट द डिज़ाइन ऑफ योर होम बाय द आर्किटेक्चर, तो आपकी कौन सी चीज़ कहाँ पे बनाई जाएगी, कैसे वो आपस में लिंक्ड होगा, दैट विल बी द आर्किटेक्चर. सो आर्किटेक्चर मीन्स द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर. थर्ड इज पैटर्न. अब पैटर्न क्या होगा? इट कन्वे द एसेंस ऑफ अ प्रूवन डिजाइन सॉल्यूशन. अब प्रूवन डिजाइन सॉल्यूशन मतलब जो डिजाइन एक बार आपने प्रूव कर दिया है, उसको पैटर्न मतलब उसको डिजाइन करना इन वन फॉर्मेट. पैटर्न का मतलब क्या है? एक फॉर्मेट लेके पर्टिकुलर उस डिजाइन को रिप्रेजेंट करना. दिस मॉड्यूलैरिटी. नाउ व्हाट इज मॉड्यूलैरिटी? मॉड्यूलैरिटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. कंपार्टमेंटलाइजेशन. कंपार्टमेंट क्या होता है? अब हम बोलते हैं कि एक ट्रेन है, उसमें इतने कंपार्टमेंट्स हैं, मतलब इतने उसमें पार्टीशंस हैं. तो कंपार्टमेंट क्या होगा? पार्टीशंस ऑफ डेटा एंड फंक्शन. हाइडिंग क्या होगा? व्हाट इज हाइडिंग देन? हाइडिंग मीन्स इनकैप्सुलेशन. कंट्रोल्ड इंटरफेसेस. दैट मीन्स you will represent only the interfaces that are related to the user after the designing. Okay, controlled interfaces मतलब you will represent the interfaces in a controlled manner. जिनकी कस्टमर को, यूजर को रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको आप क्या कर दोगे? हाइड कर दोगे. ठीक है. सो नेक्स्ट इज फंक्शनल इंडिपेंडेंस. अब फंक्शनल इंडिपेंडेंस क्या है? सिंगल माइंडेड फंक्शन एंड लो कपलिंग. कपलिंग एंड कोहेशन दो कंसेप्ट हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. फंक्शनल इंडिपेंडेंस क्या होगा? कि अगर एक मॉड्यूल का एक ही फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन के लिए आपने एक मॉड्यूल को डिजाइन किया है, दूसरे मॉड्यूल क्या है? वो इंडिपेंडेंट है. ठीक है. दैट मीन्स जो आपका गुड डिजाइन है दैट मस्ट हैव लो कपलिंग. ओके, सो नेक्स्ट इज रिफाइनमेंट. रेडी करना जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ओके, सो दैट इज बेसिकली द रिफाइनमेंट. So refinement is the elaboration of detail for all the abstraction. That means
जो भी आपने प्रोसीजर्स बनाए हैं उनकी डिटेल में इलाबोरेट करना, दैट इज द रिफाइनमेंट. ओके, सो लास्ट इज रीफैक्टरिंग. व्हाट इज रीफैक्टरिंग? सिंप्लीफाइंग द डिजाइन, okay, by using some technique. So this is a basic example of the data abstraction. For example, we are considering here the example of door. आप डोर को ओपन करते हो, क्लोज करते हो, डोर की फीचर्स होती हैं, वुड से बना है, एल्यूमिनियम से बना है, ठीक है, कौन से मटेरियल से बना है, ये सारी फीचर्स होती हैं जो भी डोर है. वी आर जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ डोर हियर टू टेल द व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन हियर. ओके, तो अगर डोर ले रहे हैं हम, तो डोर में जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन है वो क्या होगा, जो उसका एब्स्ट्रैक्शन पार्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी. मैन्युफैक्चरर होगा, मॉडल नंबर क्या है उसका, टाइप क्या है उसकी, स्विंग डायरेक्शन मतलब वो कैसे, लाइट्स, इंसर्ट मतलब की इंसर्ट करते हो उसमें, वो उसका एक क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया कि की इंसर्ट करोगे तभी खुलेगा वो. लाइट्स, ठीक है, उस पर अगर कोई लाइट लगी हुई है, जब वो ओपन होता है तो लाइट चलती है उसमें. टाइप क्या है उसकी, नंबर, वेट, ये सारे क्या है, ये एट्रीब्यूट्स हैं. डोर क्या है, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट के ये सारे क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है, वेट, ओपनिंग मैकेनिज्म, कैसे खुलता है वो, ठीक है, वहाँ पे ऊपर ऊपर क्या लगा होता है, एक डोर क्लोजर लगा होता है कि वो लगा हुआ है इसलिए तभी वो खुलता है, उसी से वो बंद होता है. ठीक है, तो ये क्या है, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड एज अ डेटा स्ट्रक्चर. डेटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या करोगे आप, जो भी आपके सॉफ्टवेयर में मॉड्यूल्स रेडी होने वाले हैं उनको एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, डेटा एब्स्ट्रैक्शन करोगे. तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको उसके एट्रीब्यूट्स के साथ क्या करना, उसका एक डेटा स्ट्रक्चर रेडी करना. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली द डेटा एब्स्ट्रैक्शन. दिस इज कॉल्ड द डेटा एब्स्ट्रैक्शन. सो नेक्स्ट इज द प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन. अब प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन में आप क्या डिस्क्राइब करोगे, दैट मीन्स जो एब्स्ट्रैक्शन है आपकी, एक फंडामेंटल कंसेप्ट है डिजाइनिंग का, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन. Abstraction can be further of two types. One is that we discussed in the previous slide, that is data abstraction. Second is the procedural abstraction. अब procedural abstraction में क्या होगा कि वो ओपन कैसे होगा, एल्गोरिथम क्या यूज हो रहा है. अ पर्सन विल मूव टू द डोर, वो डोर के नज़दीक जाएगा, उसको टच करेगा अपने हैंड के साथ. ठीक है, जब वो टच हो गया, कांटेक्ट में आ गया डोर उसके साथ, तो उसको क्या करेगा, पुल करेगा. पुल करने के बाद डोर ओपन होगा, फिर वो उसके गो थ्रू होगा, उसके मतलब बीच में से पास करेगा. सो दिस इज बेसिकली द प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन. मतलब कौन सी चीज़ों को आपने इसमें इंक्लूड किया प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन में. ओपन, ओपन मतलब जो एक्चुअल में हो रहा है, प्रोसीजर हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रोसीजर, क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है, दैट इज बेसिकली द प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन. हियर यू विल इंक्लूड द डिटेल्स ऑफ एंटरिंग एल्गोरिथम. एंटर एल्गोरिथम होगा, एक एग्जिट एल्गोरिथम भी होगा सिमिलरली. ठीक है, तो यहाँ पे आप डिटेल्स इंक्लूड करोगे एंटर एल्गोरिथम. इट विल बी इम्प्लीमेंटेड विद द नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज एसोसिएटेड विद एंटर. ओके, so procedural abstraction में you will define all the algorithms. That means you will define the algorithm that is used to enter the door.